visible and I'm audible to all of you. Okay. Okay. Fine. Good afternoon. Good afternoon, everyone. So, as many new people have also joined, so today we'll just have a quick revision also, and then we'll proceed further because it's a very important chapter and questions have been asked from this chapter. I've seen the previous year, even you might have also seen the previous year, questions are being asked from this chapter. In 2016, only one question was asked. I'll discuss that question today only. We have discussed that question, but today we'll discuss it once more, so that even all the other people who have joined recently, they might also know that there are questions being asked from this particular chapter. So let us begin the session for today. And I'm audible, right? Properly audible to everyone. Okay, fine. Thank you, Shubham. Okay, fine. Chalo. So, gravitation. We have already begun with this chapter. We have done few concepts, but today just a quick revision so that everyone can know कि क्या बात हो रही है. किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि अरे नया एकदम से क्या ये शब्द सुन लिया है. ठीक है? तो चलो. Let us start from the very beginning of this chapter. So, the story of Apple and Newton. This we have discussed. ये हम लोगों ने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था कि what is the story of Apple and Newton. So many people say कि Newton was sitting under a tree and an apple fell on him. उसके ऊपर एक सेब गिरा and then he discovered gravitation. That there are some things like these. There are some people in the earlier times they used to believe that this is a supernatural force. There is some supernatural entity which is controlling this whole universe. But Newton, as a scientist, as a physicist, he decided to research on these things. So actually, the story was कि Newton was sitting in his class, अपने classroom में बैठे हुए थे वो, and he was sitting in his classroom, and there was a window beside him. So he was looking out. There was a tree outside the window. There was a garden kind of thing, and वहाँ पे एक पेड़ था. So he was seeing at the tree, and he saw कि वहाँ से पेड़ से एक सेब गिरा. सेब था कि कौन सा फ्रूट था, you never know. बट एक पेड़ से फ्रूट गिरा एंड दिस काइंड ऑफ प्रोवोक्ड हिम कि व्हाई इज दिस हैपनिंग. ये चीज नीचे क्यों आ रही है, व्हाई इज इट नॉट गोइंग अपवर्ड्स और व्हाई इज इट नॉट गोइंग पैरेलल साइडवेज. तो ये क्वेश्चन दिमाग में आया एंड देयरफॉर न्यूटन डिराइव्ड हिज थ्योरीज. ही फॉर्मुलेटेड मेनी आइडियाज, फॉर्मुलेटेड मेनी थ्योरम्स, मेनी लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड एवरीथिंग, मेनी थिंग. सो दिस इज द बेसिक स्टोरी. ये ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ. ये स्टोरी है केवल, कॉन्सेप्ट क्या है आई टेल यू लेटर. ठीक. सो नीचे आता हुआ जब उसको दिखा तो नहीं सो कि अरे कुछ तो है ऐसा. देयर इज समथिंग विच इज पुलिंग थिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. कुछ ऐसा है जो अपने तरफ चीजों को खींच रहा है. ठीक. तो ग्रेविटेशन को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, तो वो भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग गुरुत्वाकर्षण ही बोलते हैं शायद. someone please write in the chat also. ठीक. तो ये डिस्कवर हुआ. उसके बाद now let us see. So gravitation, each and every massive body attracts each other by the virtue of their masses. This phenomenon is called as gravitation. So now first let us understand कि gravitation और ग्रेविटी, ठीक है, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक. ये जो लोग पहले से है साथ में they know कि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है. These are the same things. Just a second. These are the same things. कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है, बस बॉडीज चेंज हो जाती हैं तो वो ग्रेविटी से ग्रेविटेशन हो जाता है, ग्रेविटेशन से ग्रेविटी हो जाता है. ठीक. ग्रेविटी इज बेसिकली सब पोर्शन ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है. So each and every body attracts each other by the virtue of their masses. This is called gravitation. So now example ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, एंड एक बार फिर से आज डिस्कस करते हैं कि each and every body attracts each other. अपने को मतलब दो बॉडीज एक दूसरे को खींचती हैं अपने मतलब अपने तरफ.
ठीक, तो इसको हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। न्यूटन ने कहा कि दिस इज नोन एज ग्रेविटेशन। उसका फॉर्मूला दिया न्यूटन सर ने हम लोग को, फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे, फॉर्मूला दिया G m1m2/r²। ये r स्क्वायर है, r2 नहीं है, और ये G इंटू m1 इंटू m2/r² स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको ग्रेविटेशन का न्यूटन ने दिया। ठीक, यहाँ पे G की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होते हैं हम सबको पता है, मैथ्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है। जो यहाँ पर है वही अर्थ में, वही स्पेस में होगी, वही किसी और ग्रह पर भी वही सेम वैल्यू होगी, वैल्यू नहीं बदलने वाली उस चीज की, दैट इज कांस्टेंट। ठीक, m1 एंड m2 आर द मास ऑफ टू बॉडीज, r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, इसको क्या है, इसको ये कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। जब यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, सो वी ऑलवेज टेक दिस एज द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ आर बॉडी टू द सेंटर ऑफ अनदर बॉडी। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्यों इसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक, कंजर्वेटिव से हम लोग को पता है कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन में पढ़ा ही है, बट इसको और डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में आगे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ठीक, तो अब न्यूटन ने कहा कि दो चीजें हैं अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, एंड इसी को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। एकदम सिंपल शब्द में बोला जाए तो बस दो चीजें अट्रैक्ट कर रही है, मतलब ग्रेविटेशन। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी उठे थे, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो पहला क्वेश्चन जो उठता है, पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि उसको करना चाहिए। एंड थोड़ा सा ये फर्दर कॉन्सेप्ट्स के रूप में ये क्वेश्चन आने वाले हैं, दोबारा फिर से आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ये फिर से क्वेश्चन आएंगे आगे। बट जस्ट फॉर नाउ what we can discuss is why don't we feel it then? So I've asked you this question previously as well. Is suppose if we are, suppose I am visiting the center. I recently visited the center. ठीक है. For all the new people, just listen carefully and try to answer this question. I visited center. मैं गया सेंटर, वहां पे मैंने देखा कि कुछ लोग हैं। तो ऐसा होता है क्या कि जैसे ही मैं सेंटर में गया और मैं अंदर घुसा और जाके चिपक गया दो लोगों से, ऐसे आके क्या होता है क्या कि वहां पे 10 लोग होंगे तो 10 आके चिपक जाएंगे मेरे से। ग्रेविटेशन फोर्स तो यही कहता है। ये तो क्या लिखा है यहाँ पे, ईच एंड एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स ईच अदर बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। तो ग्रेविटेशन फोर्स तो एकदम साफ साफ कह रहा है कि अट्रैक्ट होते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा अट्रैक्ट, तो इसको फील क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, इस फोर्स को हम लोग क्यों नहीं फील कर पा रहे हैं, इसका क्या रीजन है कि हम लोग फील नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा है कुछ तो फील क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर मतलब या तो ये एक चीज गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्या न्यूटन का ये न्यूटन का लॉ गलत है, दो में से कोई एक चीज तो है। लेकिन एक्चुअली दोनों कॉम्प्लीमेंट्री चीजें ही हैं, कुछ किसी को डिफाई नहीं कर रहा है, सब सही है। ड्यू टू वीक फोर्सेस, एज सत्यम आंसर, ड्यू टू वीक फोर्सेस। अब वीक फोर्स का रीजन भी क्या है, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, ये पॉइंट मासेस के लिए हम लोग हमेशा इसको फोर्स को लेते हैं। एंड अगर अपनी बॉडी को आप कंपेयर करो तो आपका वजन कितना होगा, 70, 50, 80 केजी, 90, 100, ठीक, और इससे ज्यादा भी होगा, लेकिन कितना होगा, 200 किलो, 250, इससे ज्यादा क्या होगा, इतना भी नहीं होता, ठीक, इतना ही होगा। बट अब अपने कंपैरिजन में, नाउ यू टेक द वेट, द मास ऑफ अर्थ, the weight of earth, you just consider the mass of earth, that is 6 into 10 to the power 24 kg, so that is huge। तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे 6 into 10 to the power 24 upon your particular mass, तो that is only in 10 to the power 2, maximum 10 to the power 2। so कितना बड़ा रेशियो आएगा, मतलब 1:10 to the power 22 का रेशियो आएगा, ठीक है। कंसिडरिंग कि हम लोग केवल टेंस वाले पोर्शन को अगर डील करें तो इतना हैवी है यार, और हम लोग कितने छोटे हैं, क्या ही है, ठीक, कुछ नहीं, अर्थ के हिसाब से हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं बस, ठीक। तो पहला रीजन तो ये है कि मासेस हमारे बहुत कम होते हैं। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि जी की वैल्यू, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली गई है, बहुत बहुत छोटी वैल्यू होती है, बहुत छोटी, ठीक, तो वो भी नलिफाई कर देती है फोर्सेस को। ये डेरिवेशन किसी को अगर जानना होगा तो एक बार डेरिवेशन देख लेना, इसका कैसे होता है डेरिवेशन, बट जरूरत नहीं, क्योंकि डेरिवेशन पे क्वेश्चन नहीं आ सकता है, कोई चांस ही नहीं, क्योंकि ये सब थोड़े से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तो वो यूपीएससी हैज नेवर आस्क्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो जस्ट ट्राई एंड जस्ट थिंक ऑफ दिस कि कितने छोटे हैं हम लोग अर्थ के कंपैरिजन में। अर्थ कितनी ज्यादा मास है, अर्थ का इतना ज्यादा है
एंड हम लोग कितने छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स हैं अगर अर्थ के हिसाब से देखा जाए, ठीक। और जी की वैल्यू बहुत नेगेटिव है, तो अगर फोर्स लग भी रहा है तो नलीफाई हो जाता है। जी की वैल्यू बहुत छोटी है और हम लोग बहुत छोटे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं तो मेरे सामने लैपटॉप रखा है, आई एम अट्रैक्टिंग दिस लैपटॉप एज वेल, ये भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, बट दिखेगा नहीं हमको, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हम लोग पॉइंट मास है, ठीक। तो बहुत बहुत छोटा, बहुत वीक फोर्स, एट समवन एज समवन रोट इन द चैट एज वेल, ड्यू टू मास, यस, ड्यू टू वीक फोर्स, ड्यू टू मास, बिल्कुल सही, ठीक। तो ये सब हो गया, डिस्कस कर लिया हमने। अब ये व्हाई डोंट प्लैनेट्स कोलाइड, तो चलो ये तो एक कॉन्सेप्ट आगे एक आने वाला है, बट इसको समझाया था, चलो समझा देंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, फिर समझाएंगे। अभी यहाँ पे इस टॉपिक को छेड़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक अभी ग्रेविटेशन चल रहा है, इसमें दो कॉन्सेप्ट मिक्स हैं, ठीक है। ये व्हाई डोंट अर्थ कोलाइड विद सन, ये भी समझाया था अच्छे से, वो वाला एग्जांपल अगर याद होगा, अगर एक ऐसे घुमा रहे हैं कोई चीज, तो वो एग्जांपल वही चीज है, बट इसको डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस पे जब आएंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल सही हाल करेक्टली सेट, बट आज इसको डिस्कस नहीं करते सेंट्रीफ्यूगल को, नेक्स्ट एक टॉपिक वाइज आई विल मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन दैट, क्योंकि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में थोड़ा कंफ्यूजन ये सब होता है। व्हाट इज ग्रेविटी एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज इट, ठीक। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आएगा, जो नए लोग अगर कोई हैं यहाँ पे, तो व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज इट। तो क्वांटिटी क्या होती है, तो देखो हमारे पास दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर्स और वेक्टर्स, ठीक है। स्केलर जो होती है वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होता है, ठीक। एक क्विक रिवीजन इसका भी दे देते हैं। अगर सपोज मैं सुभाष चौराहे पे, इलाहाबाद में सुभाष चौराहा जो है वहां पे खड़ा हूं मैं, ठीक। एंड अपने दोस्त को फोन किया एंड ही सेइंग कि 30 मीटर आ जाओ, 30 मीटर आ जाओ, तो वो तो चौराहा है, चार रास्ते जा रहे हैं, अब 30 मीटर किधर जाना है भाई, ये तो मेंशन करना पड़ेगा ना किसी को। 30 मीटर आ जाओ, लेकिन 30 मीटर किधर आओ, 30 मीटर किधर, एलजीको की तरफ, या उधर पेट्रोल पंप की तरफ, या इस तरफ किधर, या इधर मेडिकल की तरफ। तो 30 मीटर बोलना मतलब स्केलर, डायरेक्शन नहीं दिया उसने, बट अब वो बोले मुझसे कि 30 मीटर इधर आओ, विनायक सिटी सेंटर की तरफ, पीवीआर की तरफ, कम टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, दैट मीन्स ही इज टेलिंग ये स्केलर। अब उस वेक्टर क्वांटिटी, अब उसने डायरेक्शन दे दिया 30 मीटर टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक। तो वो वेक्टर हो गया। अब ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी हम एक बार क्विकली देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट दिया था ग्रेविटेशन का, मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता है, कोई भी मीडियम रख दो, दो बॉडीज को पेट्रोल में रख दो, नींबू के शरबत में रख दो, attraction, the level of attraction, the force of attraction won't be affected because material पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखने वाली चीज है, ये कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड ये चीज भी जरूर एक बार देख लेना, आउट ऑफ द टू masses the heavier one is called source mass and the lighter one is called test mass, ठीक। ये एमसीक्यूज में मे भी कभी, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर टेस्टिंग कि हाँ पता है कि नहीं लाइट मास क्या होता है, टेस्ट मास क्या होता है, सोर्स मास क्या होता है। तो हैवियर वाले को सोर्स मास बोलते हैं, लाइटर वाले को टेस्ट मास बोलते हैं। तो अब अगर जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं अर्थ का और मेरा एग्जांपल, सो अर्थ के और मेरे एग्जांपल में, दो बॉडीज के एग्जांपल में सोर्स मास कौन सा होगा, जस्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। एग्जैक्टली अर्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था। अट्रैक्टिव फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, सेंटर के डायरेक्शन में ही एक्ट करता है, दो बॉडीज, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, तो जो फोर्स होगा वो इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक एक्ट करेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, यहाँ पे मीडियम से आपको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी रख दो आप, नींबू शरबत में रख दो दो बॉडीज को, रूह अफ़ज़ा में रख दो आप दो बॉडीज को, या फिर आप पेट्रोल में रख दो, कहीं पर भी रख दो, पानी में रख दो, डजंट मैटर्स, द फोर्स सेम रहेगा, ठीक। ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अनदर बॉडी इज नोन एज ग्रेविटी, ठीक। तो अब अर्थ और एक और बॉडी, ये मैंने डिस्कस किया था कि जहां पे इस फोर्स में अर्थ के साथ, मतलब अगर आपकी एक कोई बॉडी है एंड दूसरी बॉडी अर्थ है, तो उसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं,
दैट इज व्हाई आई सेड कि ग्रेविटी इज सब पोर्शन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटी के बीच में अगर कोई डिफरेंस पूछ ले तो सिंपल है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू रैंडम बॉडीज. ठीक, ग्रेविटी एक्ट्स बिटवीन अर्थ एंड अनदर बॉडी. m1 m2 दो मास लेना होता है तो एक मास अर्थ हो जाता है ऑटोमेटिकली, एंड द सेकंड मास इज एनी बॉडी, एनी रैंडम बॉडी. इट कैन बी मी, यू, एनीथिंग प्लेस्ड ऑन अर्थ, कार, साइकिल, एनीथिंग, कोई भी बॉडी से आप कंपेयर करो. ठीक, so gravitation force between earth and body is known as gravity. Expresses the force between two point masses. तो एक point masses के लिए होता है, conditions याद रखनी जरूरी है. ठीक, तो फिर ये भी एक सवाल उठा था उस दिन कि अगर point masses के लिए होता है सर, तो मून और अर्थ के बीच में अगर आपको ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है, जो कि शायद if I'm not wrong 2 into कुछ शायद आता है, अर्थ और मून के बीच में जब ग्रेविटेशन फोर्स आता है फॉर्मूला में रखने के बाद 2 into 10 to the power कुछ 26 आता है. एक बार गूगल कोई कर लेना तो पता चल जाएगा कि कितना आता है. एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही होता है. तो क्वेश्चन तो ये उठ गया कि अरे आपने तो कहा था कि पॉइंट मासेस के लिए होता है, पॉइंट मासेस तो बहुत छोटे होते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? क्या मून क्या पॉइंट मास है क्या? इतना सा तो है नहीं मून की एक उंगली इतने में आ जाएगा, या पिन ड्रॉप वाली चीज तो है नहीं, एकदम पिंच. और ना अर्थ इतनी छोटी है, तो ये यहाँ पे कैसे लग गया? तो हमने ये भी बताया था कि जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, अगर, तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि दोनों बॉडीज पॉइंट मासेस हैं. जब रेडियस से भी बड़ा डिस्टेंस हो जाए, अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो दोनों के रेडियस से भी बड़ा हो गया है. ठीक, बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ तब ये पॉइंट मासेस है, तब हम ये फोर्स लगा सकते हैं. ठीक है, तो ये फिजिक्स में मैक्सिमम चीजें, फिजिक्स और मैथ्स में अजम्पशन से ही होती हैं. अजम्पशन करने के बाद ही हम उसको प्रूव कर पाते हैं कि हाँ कैसे ये चीज सही है, कैसे ये चीज गलत है. मैथ्स में तो बहुत टाइम एवरीबॉडी हैज सीन, मैथ्स में बहुत होता है, मैथ्स में अज्यूम करते हैं थ्योरम्स और ये सब प्रूव करने के लिए. तो वैसे ही फिजिक्स भी सेम ही चीज है. तो हमने अज्यूम कर लिया कि दो मासेस पॉइंट मासेस है. ठीक, क्योंकि मून दिखता है तो छोटा सा ही ना, जब जहां से देखते हो इतना बड़ा तो नहीं दिखता जितना उसका एक्चुअल साइज है, तो पॉइंट मासेस ले लिया. फिर एक क्वेश्चन हमने किया था, तो ये क्वेश्चन किसी ने, एक ही इंसान ने सही दिया था इसका आंसर, शायद स्नेहा, नहीं श्रुति ने. हाँ, शी टोल्ड द करेक्ट आंसर. अभी सबको अब लेकिन सबको इसका सही आंसर पता होगा. ठीक है, अगर नहीं पता है तो अभी एक बार फिर सोच लो, एक चांस और है यहाँ पे. दिख रहा है क्वेश्चन सब? एक बार और सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि कुछ लोग ने गलत आंसर दिया था. रिपीट, अच्छा, ओके, फर्स्ट यू ऑल पीपल आंसर, देन आई टेल व्हाट द आंसर इज, क्योंकि डिस्कस हो चुका है एक बार. तो हमारे आंसर ऑप्शन ए. ठीक है, और प्लीज बाकी लोग भी आंसर करें फिर से भाई. लास्ट टाइम भी डिस्कस हो चुका है, फिर भी भाई आंसर्स कैसे आ रहे हैं? चलो बी, चलो 3 लोगों ने बी बोला. बिल्कुल, क्यों ए कैसे होगा? यहाँ पे आप लोग थोड़े कॉन्सेप्ट मिक्स कर देते हो. इनर्शिया इनर्शिया मत जोड़ो यहाँ पे. ये ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है. ठीक है, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस, यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रेविटी नहीं है, केवल आप हो और एक वो प्लैनेट है, सॉरी आप हो और केवल एक स्पेसशिप है. ठीक है, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है, तो ए नहीं हो सकता यहाँ पे. एंड अभी हमने पढ़ा कि ये सेंट्रल फोर्स है, ये बॉडीज को अट्रैक्ट करता है एक दूसरे की तरफ, तो यहाँ पे ये अप्लाई होगा, मूव टूवर्ड्स ईच अदर. सेम डिस्टेंस पे नहीं फ्लोट कर सकती हैं वो. ठीक है, किसी ने लास्ट टाइम बोला था इनर्शिया, इनर्शिया से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है. ठीक, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है,
लेकिन इस केस में कोई रिलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट मिक्स यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा आंसर है, ग्रेविटेशनल फोर्स से हमको अगर आंसर निकालना है किसी भी चीज का, तो हमको पता है ये चीज कि दो बॉडीज अट्रैक्ट करेंगी ही करेंगी एक दूसरे को, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो आई होप यू हैव गॉट द आंसर, यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, सो मूव टुवर्ड्स ईच अदर। चलो एक क्वेश्चन, ये भी एक बार ये भी कर लेते हैं। Just try to solve this question and give me a minute. एक बार I'll check that force between Earth and Moon. शायद 2 into कुछ होता है, 2 10 to the power 26. हम्म 2 into 10 to the power 26 होता है, ठीक है। I have just checked this now. 2 into 10 to the power 26 होता है जब हम लोग अर्थ और मून का जब मास रखते हैं वहां पे, तो अपने आप फॉर्मूले में रखते हैं, हमको मिल जाता है। तो हाँ, ओके, लेट अस सी द चैट बॉक्स। बी, ओके फाइन, ठीक है, ये भी सपोज ना कि हाँ मीडियम डिपेंडेंसी वाली चीज नहीं है, ठीक है। फिर ये तो न्यूमेरिकल था, तो आइडेंटिकल स्फीयर्स था, तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया था, काफी बड़ा था, इसको दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट, तो देखो वेट एंड मास हम लोग बात बहुत कर चुके हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी तक इस पे कुछ डेजिग्नेटेड ऐसे स्लाइड नहीं बनाई थी। तो टुडे आई हैव ट्राइड टू मेक अ स्लाइड ऑन दिस ओनली, ताकि ये चीज दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि बहुत लोग को ये क्वेश्चन में लास्ट अभी वो क्वेश्चन फिर डिस्कस करेंगे, फिर भी गलत आंसर आ सकते हैं। तो ये इस बार जब खत्म करेंगे इस चीज को, तो उस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। तो एक बार इस पे मैंने सोचा कि इस पे ग्रेविटी, वेट और मास पे एक स्लाइड डेजिग्नेटेड बना देते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट। ओके, इस चैप्टर में आप ज्यादा कुछ ऐसा बचा नहीं है, अगर नाइन्थ के हिसाब से देखा जाए तो है नहीं कुछ ज्यादा। तो इसको हम लोग एंड भी कर सकते हैं, लेकिन एक सेशन और ले सकते हैं, उसके बाद इसको एंड कर देंगे, क्योंकि इसमें और कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में ज्यादा, मैक्सिमम चीजें। हाँ, जस्ट अ सेकंड, stylus is not working, just give me a minute. Okay, fine, now it's working. So yes, we can start now. तो ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट। ओके, सो आज ये चीज एकदम फुल क्लियर कर देते हैं। अब इस पे क्वेश्चन बनेगा तो कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज
से आर अर्थ। Please bear with my drawing. This is our Earth. Okay. So now suppose you are standing on Earth. ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे अच्छी याद आ गई। ठीक है, तो अब तो पहले तो आप लोग बोल सकते हो कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है फोर्स, बट सर यहाँ तो हम अर्थ पे ही खड़े हैं, अर्थ पे ही खड़े हैं, तो अब का आएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जीरो हो गया, तो फोर्स लगना ही नहीं चाहिए, मतलब सॉरी इनफाइनाइट फोर्स लगना चाहिए। ठीक, तो इसका हमने क्या आंसर दिया था लास्ट क्लास में? अगर ये ऐसा कोई सवाल पूछ ले कि अरे आपने तो बोला था कि ये डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बट अब तो हम अर्थ पे ही खड़े हो गए, लो अब आप बताओ कहाँ से फोर्स लगेगा? अब तो हम अर्थ पे खड़े हैं ना, अब तो डिस्टेंस, अब अर्थ पे खड़े तो डिस्टेंस तो है नहीं हमारे बीच में कोई, तो इसका आंसर क्या दिया था लास्ट क्लास में, प्लीज बताएं? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। ठीक, ये चीज याद रखना। तो ये डिस्टेंस की ये बात नहीं हो रही है कि आप अर्थ पे खड़े तो कोई डिस्टेंस नहीं, आपके और अर्थ के बीच में डिस्टेंसेस जरूर हैं। ठीक, तो ये सेंटर से, आपके सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक ये डिस्टेंस हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स में हमेशा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया जाता है। ठीक, तो चलो ये चीज तो सबको याद है, वेरी गुड। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वापस अपना यहाँ पे आ गए, ये हम खड़े हैं, ये अर्थ पे खड़े हुए हैं। ठीक, डिस्टेंस वाली चीज सबको क्लियर हो गई कि हाँ सेंट्रल सी टू सी, बिल्कुल सही, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स तो हमको पता है, अब हमने अर्थ का मास माना m, अपना मान लिया स्मॉल m। ठीक है, सपोज करो इसका कोई भी ए पर्सन है, ए पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो F इज इक्वल टू G m, अर्थ का मास m, अपना मास अपॉन r स्क्वायर। ठीक, ठीक है, अच्छा देख, ये चीज देखना कितनी चीजें कनेक्टेड है। अब यहाँ से अभी एक चीज रिलेट करवाएंगे पुरानी, फिजिक्स में हर चीज लिटरली कनेक्टेड है। ठीक, अब यहाँ से देखना क्या होगा, इसको हटाते हैं, इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, इस पे फोकस करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक, तो ये तो हमको दिख रहा है, ठीक है, m r²। तो चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, G m r², इसको ऐसे कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको m कर दिया। मैथ्स में पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को, चलो बताओ एक बार चैट में। ठीक है, इसको हमने ऐसे कर दिया, Gm अपॉन r² इंटू m को हमने अलग रख दिया, मास ऑफ ए अलग रख दिया। ठीक, अब ये बताओ, क्या इस इक्वेशन को देख के कुछ याद नहीं आ रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इस इक्वेशन को देख के, ये इक्वेशन ध्यान से देखना, इस इक्वेशन मैं फिर से लिख दूंगा इसको ताकि अच्छे से देख पाओ आप लोग। F इज इक्वल टू बड़ा बड़ा लिख कर इस बार, G m अपॉन r², इसको हमने इधर कर दिया इनटू मास ऑफ A। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को और बोलो कि क्या याद आ रहा है इससे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, लेकिन याद क्या आ रहा है इससे, इसको रिलेट कैसे करेंगे, कहां से जोड़ सकते हैं इसको? कहीं से जोड़ सकते हैं इसको, कहीं से कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं आप लोग कि कहां से इसको, हम इसको कहां से खींच के लाया हमने? बहुत सिंपल है, ध्यान से इक्वेशन पे एक बार फोकस करो सब लोग, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, किस चीज से एनालॉजी क्रिएट करो इसको चलो चलो मैं मुझे ही बोलना पड़ेगा फिर, तो फिर आंसर पता चल जाएगा। चलो एक हिंट और देते हैं,
बता देते हैं कि ना बताएं? चलो अच्छा बता देते हैं, ठीक। एक हिंट और दे रहे हैं फाइनली, लॉज ऑफ मोशन में जाओ। अब इससे ज्यादा नहीं बता सकते। लॉज ऑफ मोशन में एक बार आप लोग प्लीज रिकॉल करिए। एफ इज इक्वल टू एम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं, नहीं नहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं, न्यूटन्स लॉ, लो लॉ, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम ए, बिल्कुल बिल्कुल सही श्रुति, बिल्कुल सही। ध्यान से देखो ना, क्या है क्वेश्चन, क्या है ये, मास है, ये मास है, तो ये क्या है, एक्सीलरेशन है। एक कॉन्सेप्ट होता है डायमेंशंस का, ठीक है, डिटेल में नहीं बताएंगे आज, लेकिन बता देते हैं, ठीक। डायमेंशन जो एक क्वांटिटी का होता है ना, डायमेंशन बेसिकली उसको एम एल टी में हम लोग डिनोट करते हैं, मास लेंथ टाइम में। तो अगर फोर्स का कोई फॉर्मूला डिफाइन किया गया है, ठीक है, डायमेंशन से ही पहले चेक किया था, साइंटिस्ट लोग भी चेक करते थे कि भाई अगर हम किसी चीज का डायमेंशन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका ही उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू कुछ ले लिया, ठीक है, निकालना पड़ेगा अभी, बट डायमेंशन एम एल टी में होता है मास लेंथ टाइम, फिजिकल ये क्वांटिटीज के बेसिस पे होता था। तो अगर फॉर्मूला आपका इसके जैसे कि फोर्स का डायमेंशन अगर निकाला, ठीक है, डायमेंशन बता दें क्या, कैसे बता दें, डायमेंशन बताया जाए। बेसिकली डायमेंशन मतलब ये होता है एक क्वांटिटी को मास लेंथ और टाइम के उसमें रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ये क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। तो मास लेंथ और टाइम में डिनोट करना, ठीक है। एंड अगर वो चीज एग्जैक्ट सेम नहीं आ रही किसी एक, जैसे मान लो किसी ने कभी आके कह दिया फोर्स बराबर क्या बोलेंगे, से फोर्स बराबर कुछ भी एक रैंडम फॉर्मूला से बना देते हैं ना, फोर्स बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक। किसी ने कहा, आज कोई नया इंसान आया और उसने बोला कि फोर्स बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। एम एल टी माइनस टू होता है फोर्स का डायमेंशन, बिल्कुल श्रुति ने लिख भी दिया है यहाँ पे, ठीक। अब ये एम एल टी माइनस टू घबराने वाली कोई बात नहीं है कि क्या होता है, आई टेल यू, ठीक है। अब कोई चीज है सपोज, ठीक, अब मैंने कह दिया आज कि नहीं न्यूटन ने गलत बताया, एंड आई एम ट्राइंग टू डिफाई हिज थ्योरी, ही वाज कंप्लीटली रॉन्ग, एंड आई एम सेइंग ये आप न्यूटन के ऊपर केस करिए और लीगल सूट करिए, आप गलत बोला न्यूटन ने, फोर्स इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ही वाज रॉन्ग। तो अब साइंटिस्ट बोलेंगे अच्छा केस करने आया, न्यूटन पे केस करने आया हो, चलो ठीक है, चलो हो सकता है तुम सही हो भाई, लेकिन इसके पहले एक चीज हम तुमसे कराएंगे, हम जरा एक बार चेक करते हैं इसका डायमेंशन कितना आ रहा है, ठीक। अब इसका डायमेंशन जो भी आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बहुत ही वेग सा एकदम रैंडम बना दिया है, ठीक। तो इसका डायमेंशन अगर अगर इसका डायमेंशन एम एल टी माइनस टू नहीं आया, ठीक, माइनस टू क्यों लिखते हैं, क्योंकि अब बताना पड़ेगा पूरा डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, लेकिन इतना जान लो कि समझ लो एक टर्म है, अगर हमने यहां से ये निकाला, ठीक है, फोर्स को इस फॉर्मूले से निकाला और मास लेंथ टाइम इस रूप में नहीं आया, अरे यार ये क्या हो गया, इज माई स्क्रीन विजिबल? हेलो, पता नहीं क्या हो गया था, ओके चला गया है वो चीज, चलो फिर से एक बार बता देते हैं। ओके, नाउ नाउ इट इज विजिबल राइट, ठीक है, चलो एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक। हम एकदम तुर्रम खा बन के गए कि हमने बोला कि फोर्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, न्यूटन गलत था। उन्होंने बोला ठीक है हम मान लेते तुम्हारी बात, न्यूटन गलत था तुम सही हो, लेकिन तुम चलो ठीक है बताओ, एम एल टी माइनस टू अगर तुम्हारा ये नहीं आ रहा है इस फॉर्मूले से, तो न्यूटन तो छोड़ो हम तुम पे केस कर देंगे कि तुमने गलत फॉर्मूला बना दिया है। तो अब एम एल टी माइनस टू मतलब यहाँ पे भी सेम इसके टर्मिनोलॉजी इसके उसमें आने चाहिए। अगर यहाँ पे एम वन है, सॉरी यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन आना चाहिए, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन आना चाहिए, यहाँ पे माइनस टू है टाइम तो यहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक। तो ये होता है डायमेंशंस का फॉर्मूला। तो फोर्स को निकालने का एक ये तरीका है, मतलब फोर्स को चेक करने का कि आप सही बोल रहे हो कि नहीं, डायमेंशंस के थ्रू चेक कर लो कि हाँ डायमेंशंस अगर सेम है दोनों क्वांटिटीज के, मतलब कि फोर्स सेम है, गलत नहीं है कुछ भी उसमें, ठीक है। तो चलो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। ये डायमेंशंस वाला हम लोग 11th क्लास का है, पढ़ेंगे जरूर पढ़ेंगे इसको भी,
लेकिन आज कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा डायमेंशन क्या होते हैं, बट ठीक है अभी के लिए इतना जान लिया बहुत है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो हमने क्या बताया था यहाँ पे, सॉरी एम तो ए, एम ऑफ ए क्या था, वो इंसान का मास जो यहाँ खड़ा हुआ था। ए क्या है, एक्सीलरेशन। अब इस केस में जो हमारा एक्सीलरेशन है वो क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी डायमेंशंस बता सकते हैं तुरंत, लेकिन आज के लिए मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है कि डायमेंशंस क्या होता है, बस जान लेना जरूरी है कि एमएलटी के फॉर्म में हमने जो डिनोट कर दिया, और भी होता है बट एमएलटी के फॉर्म में हमने डिनोट कर दिया, बेसिक होता है। ठीक, तो अभी हमने जान लिया। तो हम ये जो हमारा ए है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि किसी ने लिखा भी था, कहाँ गया, समवन रोड इन द चैट ना। ठीक है, किसी ने लिखा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हमने कनेक्ट कर लिया न्यूटन लॉ से भी इसको, एफ इजिकल्स टू एम से। तो देखो कैसे हर चीज रिलेट हो रही है, कैसे न्यूटन लॉ से हम यहाँ पे आए। हमने देखा कि हाँ न्यूटन ने कहा था एफ इजिकल्स टू एम है, एमएलटी माइनस टू इधर भी था, एमएलटी माइनस टू इधर भी है, मतलब कि सही है, फोर्स सही है। ठीक है, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर हमको यहाँ से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल गया। मास तो इस इंसान का जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो बस अब इसी इसी फॉर्मूले से ना ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम लोग निकालते हैं पूरा रख वक्त के, तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हमारा एक्सीलरेशन होता है वो आता है, यहीं से डिराइव हुआ है। ठीक, इसको क्लियर कर देते हैं। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट, तो ये हमने यहाँ पे देखो लिखा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी। ग्रेविटी ऑफ मून लेस, यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डज इट इफेक्ट्स वेट। ग्रेविटी ऑफ मून लेस क्यों है एंड हाउ डज इट अफेक्ट्स वेट। तो अब मास और वेट का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से हम लोग यहाँ जंप करते हैं क्विकली। तो ये सब हमने आ गया ग्रेविटेशन फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी। अब ग्रेविटी ऑफ मून लेस, अब देखो ग्रेविटी ऑफ मून लेस क्यों है, ठीक, उसका उसका क्या रीजन है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है यहाँ पे, उसका मास एग्जैक्टली लेस मास ऑफ मून, बिल्कुल सही, एकदम पकड़ लिया, तुरंत पकड़ लिया, जो भी था अजीब, वेरी गुड, एकदम तुरंत पकड़ लिया कि हाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड कर रहा है जी एम अपॉन आर स्क्वायर पे। ठीक है, ये डिस्टेंस तो हुआ जो हुआ ही, ठीक है, उसका रेडियस, बट एम एम जो है एम की वैल्यू छोटी होती है, तो इसीलिए वहां पे 1/6 ऑफ हमारा अर्थ का आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 1.6 आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1.9.8 अगर होता है, 1.6 कुछ आना चाहिए, 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन आना चाहिए मून पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मून, ऑन मून, सॉरी ऑन मून, तो वो इतना कुछ आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। फिर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ मून लेस एंड हाउ डज इट इफेक्ट्स वेट। ठीक, अब ये क्वेश्चन भी हो चुका है, लेकिन फिर से आज एक बार करवाएंगे इस चीज को। अभी चलते हैं कुछ पुरानी स्लाइड्स में। ठीक, तो ग्रेविटी ऑफ मून लेस, ये तो हमको दिख गई ग्रेविटी ऑफ मून लेस क्यों है एंड हाउ डज इट अफेक्ट्स वेट। ठीक, तो ये बताइए आप लोग, जब हम लोग ग्रेविटी अभी पढ़ रहे हैं एंड ग्रेविटी में हमने देखा कि फोर्स बाय एनी ऑब्जेक्ट, फोर्स बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वही होती है हमारी ग्रेविटी, वही होता है हमारा वेट। वेट क्या है, देखो यहाँ पे भी लिखा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एनी ऑब्जेक्ट विद अ स्पेसिफिक मास। ठीक, वही है हमारी ग्रेविटी, वही हमारा वेट है। वेट एक फोर्स है, ठीक है, वेट जो है फोर्स है, डिपेंड करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, इसी फॉर्मूले से वेट भी आता है। तो फोर्स जो होता है, अब सिंपल सी बात है कि वेट ही हमारा ग्रेविटी है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे हो, आपका वेट यहाँ पे 70 केजीज है, क्यों है 70 केजीज, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक, बट ज्यादा है, ठीक है, बट अब मून पे जाओगे तो वहां पे 1.62, बहुत कम हो गया, 1/6 हो गया। तो अगर आप 60 किलो के यहाँ पे हो तो मून पे जाओगे तो 10 किलो के हो जाओगे। ठीक है, समझ में ये बात आई, क्योंकि
वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट गया, वहां की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं कि आपको होल्ड करके रखता है बहुत देर तक के लिए, तभी आप देखो वहां पे हॉपिंग करते हैं लोग, साइडवेज मूवमेंट करते हैं मून पे जब भी जाते हैं, ठीक है, या स्पेसशिप से कुछ अपना बांध बांध के उसके थ्रू चलते हैं मून पे, क्योंकि इतनी ग्रेविटी नहीं है वहां पे कि आप वहां पे सस्टेन कर पाओ। ठीक, ये सबको क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से वेट का कॉन्सेप्ट आ गया कि वेट अगर हमसे किसी ने पूछ लिया तो सिंपल सा हम बोलेंगे, अगर कोई हमसे पूछता है वेट का फॉर्मूला क्या है, तो बोलेंगे वेट बराबर mg। mg क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, ये कहां से आया फोर्स? इससे आया g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, वहां वो हमको मिला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने वेट निकाल लिया, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, मतलब हमारा मास और एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब बार बार तो ऐसा हम रखेंगे नहीं कि वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, बार बार क्यों रखेंगे? जब हमको पता है उसकी वैल्यू ऑलरेडी, तो हम वही यूज करेंगे ना फिर। तो बार बार तो ऐसे नहीं एग्जाम में सॉल्व करने बैठ जाएंगे कि नहीं, पहले जी एम अपॉन आर स्क्वायर निकालेंगे फिर उसके बाद उसमें रखेंगे। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सिंपल सी बात, फॉर्मूले में रखा, मास हमको पता है, वेट हमको मिल गया, एंड वही हमको फोर्स हो जाएगा। वेट क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक, चैट में ओके फाइन, ठीक। चलो, तो अब यहाँ पे एक टेबल, ये कहीं से मैंने इमेज उठाई थी, ठीक है, ठीक। मास क्या होता है? मास अभी अभी मास पे भी आते हैं, अच्छे से मास पे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इससे ही समझ में आ जाएगा मास क्या होता है। मास जो है हमारा, ठीक, वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे अंदर है उससे बनता है, हमारे अंदर जो चीजें उससे बनता है मास हमारा। वेट जो है वो बनता नहीं है कहीं पर, वो डिपेंड करता है किस प्लेनेट पे हो, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। तो अगर अर्थ पे हो तो अलग वेट है, मून पे हो गया अलग वेट है, मार्स पे जाओगे अलग वेट है, हर जगह अलग अलग ग्रेविटी के हिसाब से डिपेंड करते हैं, ठीक। एंड ये एक्चुअली अर्थ पे भी कितनी जगह ग्रेविटी बदलती है, ठीक, ये हम लोग ये भी 11th क्लास में पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे नहीं, बता देंगे बाद में। अर्थ पे भी बहुत जगह ग्रेविटी बदलती है, पोल्स पे अलग है, इक्वेटर पे अलग है, तो तब भी वेट हमारा आगे पीछे थोड़ा बड़ा होता रहता है, बहुत ज्यादा चेंजेस है बट होता रहता है, ठीक है। तो ग्रेविटी जहां जहां चेंज होगी वहां वहां वेट बदलेगा, बस वही कॉन्सेप्ट है। मून पे गए तो अलग हो गया। सेकंड चीज क्या है? नेवर जीरो, मास नेवर जीरो, ये चीज हमेशा दिमाग में बैठा लेना। ये इस क्वेश्चन में भी बताया था कि मास जीरो नहीं हो सकता, कभी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है मास, ठीक है। वेट जो है वो जीरो हो सकता है, जहां ग्रेविटी जीरो वहां वेट जीरो, जो कि हम लोग कहते हैं कि स्पेस में जहां पे देखो ग्रेविटी कहीं जीरो ऐसा नहीं होता कि एकदम जीरो होगी, नेग्लिजिबल मानते हैं, जस्ट लाइक फ्रिक्शन नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो कह सकते हैं कि हाँ वहां ग्रेविटी जीरो, जैसे स्पेस में कहते हैं ना ग्रेविटी नहीं है तो हम उड़ रहे हैं स्पेस में, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी बहुत ग्रेविटी हर जगह होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि हम उस पर्टिकुलर जगह में मान लेते हैं कि हाँ यहाँ पे ग्रेविटेशन, एक्सटर्नल ग्रेविटी नहीं है कोई, और जो है सो है, जो हमारे थ्रू हो रही वही ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा। वेरीज पर लोकेशन, नो, मास हर जगह सेम है। इलाहाबाद में रहो, अहमदाबाद जाओ, मुंबई जाओ, कहीं भी चले जाओ, वेरीज पर लोकेशन, ये वेरी नहीं करने वाला है, ये वेरी नहीं करेगा, मास सेम रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि अगर आपकी बॉडी में इलाहाबाद में 10 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या कहते हैं कहीं और किसी स्टेट में चले जाओ, किसी स्टेट में किसी जगह चले गए, मान लो अहमदाबाद से चले गए, मुंबई चले गए, तो ऐसा नहीं कि वहां पे 25 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो सेम रहने वाला है, जितना अंदर है बॉडी के उतना ही रहेगा, ठीक है। अब ये नहीं पूछ ये तो दिमाग में नहीं आ रहा ना किसी के कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये हमारे अंदर कैसे हैं बने, तो हम लोग भी एटम्स के ही है ना, हम लोग भी तो सेल्स और पार्टिकल्स के ही बने हैं, सब चीजें हैं तो माइन्यूट, मतलब क्या बोलते हैं एटॉमिक लेवल पे तो देखा जाए तो वही चीज है ना, एकदम डीप पे नहीं जाना है इसमें कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन थोड़े हम लोग के खून में बह रहे हैं सब, लेकिन है तो हम लोग एटॉमिक लेवल पे, अंदर से देखा जाए सब कुछ एटॉमिक है ना, तो वही चीज यहाँ पे बात हो रही है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वेट, वेट हमारा वेरी करता है, बिल्कुल करता है, बता दिया। हाउ टू मेजर बैलेंस, तो ये कोई नापने की जरूरत नहीं है, अब तो खैर मशीन्स आ गई हैं, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। एंड बेसिकली पता है क्या, वेट जो हमारा होता है ना, जो हम लोग जब वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं
तो अब देखो यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे अब देखते हैं कौन आंसर कर पाता है इस चीज को। जब आप वेइंग मशीन पे खड़े हो रहे हो, ठीक है, तो पहले तो बताओ यहां पर न्यूटन का कौन सा लॉ सबसे ज्यादा एप्लीकेबल। आप एक वेइंग मशीन पे खड़े हुए हैं, जस्ट अभी आपने एक वेइंग मशीन निकाली एंड यू जस्ट पुट अपॉन इट, सबसे ज्यादा कौन सा लॉ एप्लीकेबल है यहाँ पे न्यूटन का? थर्ड लॉ। ठीक, बिल्कुल सही, थर्ड लॉ। क्यों थर्ड लॉ? अब देखो, वेइंग मशीन पे खड़े हुए, अपना वेट, अपना वेट वेइंग मशीन पे डाला, वो वापस क्या करेगा? हम लोग जब अर्थ पे खड़े होते हैं, अपना वेट नीचे डालते हैं, तो अर्थ क्या करती है, कौन सा फोर्स लगाती है? फोर्स का नाम नॉर्मल फोर्स। एग्जैक्टली। ये जो वेइंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमारा जो वेट टपता है ना, वो वेइंग मशीन का नॉर्मल फोर्स है, वो हम पे फोर्स एग्जर्ट कर रही है, तो उसकी रीडिंग आती है वहां पे कि वही तो। और नॉर्मल फोर्स, जब तक कोई पैरेलल मूवमेंट नहीं है आपकी, तब तक तो नॉर्मल फोर्स बराबर आपके वेट ही होगा ना। ठीक है, जब तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, तब तक नॉर्मल फोर्स बराबर वेट होगा। ठीक, समझ गए ये चीज कि जो वेइंग मशीन दिखा रही है दैट इज नथिंग बट द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मशीन ओनर्स, तभी वो हमको दिखाती है, ठीक है, कि नॉर्मल फोर्स हम पे लगा रही है। एंड इवेंचुअली वो बराबर होता है, क्योंकि हम लोग अभी कोई ऐसा तो है नहीं एक्सेलरेशन कर रहे हैं, ऐसे हवा में उड़ रहे हैं या ऊपर नीचे कुछ भाग रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो नॉर्मल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस आउट होते हैं। ठीक, मेजरमेंट इन किलोग्राम्स और ग्राम्स, ओके, वेट इन न्यूटन्स। बिल्कुल सही है। mg को हम लोग न्यूटन बोलते हैं बेसिकली, तो बस इसको न्यूटन में मेजर करते हैं, इसको किलोग्राम को ग्राम से मेजर करते हैं। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए हमेशा ये, हमेशा तो नहीं बट मैक्सिमम टाइम दिया रह सकता है, तो कभी भी जब कोई फॉर्मूले में अगर जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आप बैठा रहे हो किसी फॉर्मूले में, तो प्लीज नोटिस की बात किसकी हो रही है। अगर वहां पे आपने देखा कि वहां पे दिया है न्यूटन में, ठीक है, आपको दिया है कि अ बॉडी मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वेइंग, ठीक है, वेइंग तो टर्म भी यूज कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लो वेइंग टर्म भी नहीं यूज किया है, ठीक है, इनडायरेक्टली लिखा है कि इट इट मेजरमेंट्स आर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एम करके लिख दिया है 20 न्यूटन। तो यहाँ पे भूल से भी ये फॉर्मूला मत बैठा देना कि F इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको उन्होंने वेट दिया है एंड F इज इक्वल टू एम ए में हम लोग बात करते हैं मास की, ठीक है। तो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग, डिवाइड करके जी से कन्वर्ट करेंगे, उन्होंने हमको वेट दिया है, फिर हम लोग F इज इक्वल टू एम ए में बैठाएंगे। एक क्वेश्चन पिछली क्लास में भी किया था इसके ऊपर, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दे दिया था, लेकिन यही हमको ध्यान देना होगा कि मास की बात कर रहे हैं कि वेट की बात कर रहे हैं। अगर मास की बात कर रहे हैं तो कन्वर्ट करो उसको पहले, फिर फॉर्मूले में बैठाओ, ठीक है। एंड मैक्सिमम फॉर्मूले से मास ही लेते हैं, वेट मेरे ख्याल से किसी फॉर्मूले में नहीं लिया था जनरली, क्योंकि वेट वेरिएबल होता है, मास हमको पता है कांस्टेंट रहेगा, तो फिजिक्स को और सिंपल करने के लिए मास ही लिया जाता है हर जगह। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब ये देखो, ये एक है मास इस, ये सब सिंपल दिख ही रहा होगा, इसको पढ़ लो बस एक बार, सब पढ़ाई दिया है, इसको बस एक बार और देखना है, दिख रहा होगा सबको। Mass is how much matter an object contains. Weight is force exerted by the mass on a mass by gravity. Mass is constant, weight is not constant. Kilogram is unit of mass, Newton is unit of weight. ठीक, समझ में आ गया? बस दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट कर सकते हो। न्यूटन को तुम सॉरी किलोग्राम को न्यूटन में बदलो, न्यूटन को किलोग्राम में बदलो, 9.8 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन में ध्यान देना बहुत जरूरी है कि मास की बात हो रही है कि वेट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया देखो, वेट 50 केजी अर्थ पे, मास 50 केजी। अब मून पे आ गया ये इंसान, अब इसका वेट हो गया 8 केजी। क्यों हो गया, क्यों हो गया वेट 8 केजी? 1/6 और 50, 8 पॉइंट कुछ आएगा, 8.3 समथिंग कुछ आएगा, तो उसको राउंड ऑफ करके 8 लिख दिया है, ठीक है।
अब यहाँ पे 50 kg मास, 50 kg मास दोनों तरफ रहेगा। ये देखो एरो बना है इधर कि दोनों ही तरफ 50 kg रहेगा, मास नहीं बदलने वाला इसका, वेट बदल जाएगा, मास नहीं बदलेगा। और वही चीज पाउंड्स और न्यूटन में दी है, तो कुछ नहीं, कन्वर्ट कर देंगे उसको पाउंड्स और न्यूटन में, हमको मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब तीसरा टॉपिक जो था वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि उसको मैं स्टाइलस से आई एक्सप्लेन यू ऑल। सो 251 हो रहा है मेरे ख्याल से, 10 मिनट में तो हो जाना चाहिए, कर लेते हैं, है ना। इसको मैं लिखा नहीं हूं, तो जानबूझ कर नहीं लिखा हूं क्योंकि वो इक्वेशंस से रिलेटेड है, तो इक्वेशंस लिखने में बहुत दिक्कत होती है इस पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। सो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इसको क्विकली, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। एक अरे वो क्वेश्चन भी करना था यार, जस्ट अ सेकंड। हाँ ये देखो 2015 का क्वेश्चन है सिविल्स का, दिख रहा है क्वेश्चन सबको। चलो आज देखते हैं इसको कितने लोग सही करते हैं, क्योंकि उस बार भी सही मतलब गलत थे बहुत लोगों के। इसका आंसर प्लीज बताएं, एंड आई एम वेटिंग। आज किसी ने गलत नहीं दिया आंसर, पक्का सब लोग श्योर हो, सी ऑप्शन होना चाहिए। चलो सब लोग सी बोल रहे हैं, मतलब कि सही है फिर, है ना, आई कैन ऑल्सो गो विद दैट ऑप्शन, ठीक है। है ना, चलो सबने सी बोला है तो मतलब हाँ सही है, फिर सी ही इसका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में तोड़ मरोड़ करते हैं। नाउ आई विल से, ठीक, कि वेट बताओ उस ऑब्जेक्ट का। अब इस ऑप्शन, अब आप आंसर करो इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में इन्होंने मास पूछा है, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, एंड नाउ आई एम आस्किंग यू द वेट। नाउ टेल मी द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ऑप्शंस यही रहेंगे। हमको मास दिया है 100 kg, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जी की वैल्यू 10 दी है, 100, 10। पहले तो चलो हम ऑप्शंस अभी कुछ नहीं बता रहे हैं, अभी अभी के लिए बस इतने, यही ऑप्शन है, इससे ही निकालना है आप लोग को। वेट पूछना है, ठीक है, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। ऑप्शन, विच ऑप्शन? Option. Tell the option. Is there any option available in the in this given set of options? ऑप्शन इनमें से कोई ऑप्शन है, ये बताओ। नो, ठीक, बिल्कुल सही। क्यों नहीं है ऑप्शन? क्योंकि अब देखो, मास दिया हुआ था, हमने पहले वहां से वेट निकाला, एम पता है हमको, जी पता है हमको, हमने निकाला वेट। जब हमको वेट मिला और लोगों ने केजी में आंसर दिया है, तो अभी जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक,
कि हम लोग वेट को न्यूटन्स में लेते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करके आंसर दिया है, कोई बात नहीं, जस्टिफाइड है, बट जो नेचुरल है उसमें भी आंसर अगर देते तो मतलब ऑप्शन में हो सकता है मे भी कंफ्यूज भी कर दे ऐसे कि दो ऑप्शन दिए रहेंगे एंड दोनों की मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट किलोग्राम और न्यूटन में फंसा देगा, तो वहां पे ध्यान देना, यहाँ पे ठीक है कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर दिया उसको कोई बात नहीं, बट उस समय ध्यान देना है कि न्यूटन में लेते हैं वेट, मास किलोग्राम में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करके बाद में वो तो हम लोग कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं हो। कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक, हाँ, तो 16.5, हाँ वही उसका वही आंसर है लगभग लगभग, सबने सही आंसर किया है, ठीक, तो समझ में आ गया सबको, वेट और मास अब नहीं फंसना चाहिए क्योंकि इस पे देखो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक, 2015 में आया था क्वेश्चन, बहुत पुराने समय की बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी एक क्वेश्चन शायद कोई आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव टू चेक ऑन दैट, बट क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पक्का आते हैं क्वेश्चन, वो कर सकते हैं ऐसे घुमा के, कभी यूनिट बदल लेंगे, कभी मे भी हो सकता है दो मैग्नीट्यूड्स दे दें एंड दोनों की यूनिट्स अलग करते हैं एंड दे माइट ट्राई टू प्ले विथ योर माइंड कि न्यूटन को केजी कर दिया, केजी को न्यूटन कर दिया, जो भी, तो ऐसा हो सकता है, दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन फ्यूचर, ठीक है, और ये सब क्या है, ठीक है, ये सब पुराने क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो 2 मिनट लेके चलो इसको बता देते हैं। इसमें देखो दो चीजें आएंगी, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में दो चीजें आती हैं, एक केस हम लोग देते हैं व्हेन वी आर थ्रोइंग समथिंग एंड व्हेन वी आर ड्रॉपिंग समथिंग, टाइम लग जाएगा दोनों चीजों में, एक चीज करते हैं आज, है ना, थ्रो और ड्रॉप कर लेते हैं क्योंकि फालतू में मतलब नहीं है, ऑलरेडी काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं आज, इससे ज्यादा फोर्स करने पे फिर वही होता है कि हेजी सा हो जाएगा एंड यू वोंट बी गेटिंग, स्टाइलस में क्या हो जाता है, जस्ट अ सेकंड, समथिंग इज रॉन्ग विथ माय स्टाइलस, आधा टाइम तो इसमें चला जाएगा, स्टाइलस ही नहीं काम कर रहा। एक्सपर्ट में कहता हूँ, ओके फाइन, तो दो केसेस होते हैं, अगर आप किसी एक जनरल टर्म्स में देखा जाए तो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू स्टडी द ऑब्जेक्ट्स मोशन, सो इट विल बी ईदर अगेंस्ट ग्रेविटी और ईदर विद ग्रेविटी, ठीक है, दो केस होते हैं, ठीक, एंड इन दैट केस वी यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन ओनली, ठीक है, अब इसमें थ्रो और ड्रॉप वाला केस है, तो पहले हम लोग ड्रॉप वाला केस कर लेते हैं, ड्रॉपिंग जब करते हैं चीजों की, ठीक, 5 मिनट और लगेगा बस, केवल ड्रॉप वाला केस करेंगे, थ्रो वाला केस नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है, तो अब हम कोई चीज ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन द टेरेस, योर ओन टेरेस स्टैंडिंग, यहां से आपने एक बॉल ड्रॉप करी, आपने एक बॉल ऐसे पकड़ी, जस्ट लाइक दिस बॉल, यू ड्रॉप इट नीचे की तरफ, ठीक, इसको बोलते हैं ड्रॉप वाला केस, जब हम लोग कोई चीज गिरा रहे हैं नीचे से, ठीक है, अब ड्रॉप वाले केस में हमेशा ये चीज याद रखना, ठीक, पहले तो 4 चीजें याद कर लो, जो लोग नए हैं उनको शायद नहीं समझ में आएगा, बट ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू रिवाइज दी ऑन प्रीवियस लेक्चर्स और यू कैन आस्क मी डाउट्स, दैट वुड आल्सो डू, बट अभी के लिए इतना जान लो, VAST वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस, ठीक है, 3 चीजें, 5 चीजें, ठीक, तो जब हम कोई चीज ड्रॉप कर रहे हैं ना,
कोई चीज हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं कहीं से, तो हमेशा हम लोग यू को जो है क्या लेंगे, तो बता सकता है? मैं नहीं बताता, चलो एक बार क्या लेंगे यू को अगर ड्रॉप कर रहे हैं कोई चीज को। जस्ट थिंक ऑफ इट वंस कि आप कोई चीज ऐसे ड्रॉप कर रहे हो तो क्या लोगे उसको? जीरो। ठीक, जीरो लेंगे। क्यों जीरो लेंगे? आप ड्रॉप कर रहे हो ना, नॉट थ्रोइंग इट, ड्रॉप कर रहे हो बस, मतलब उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वो वेलोसिटी इसकी जीरो है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे। अब यहाँ पे अब इक्वेशन ऑफ मोशन सब लोग को एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज करवाते हैं। v is equals to u plus 80, v square is equals to u square plus 2as, s is equals to ut plus half 80 square। और इस इक्वेशन ऑफ मोशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या थी? इक्वेशन ऑफ मोशन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी? एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, तो अब दिमाग में ये आना चाहिए कि ठीक है चलो ये सही है, हमने मान लिया, बट सर ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमने 1D मोशन के लिए पढ़ी थी, एंड इसमें कंडीशन यही थी कि 1D मोशन होना चाहिए और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। चलो ये भी प्रूफ कर देते हैं। नीचे ड्रॉप करो बॉल को, कौन सा मोशन है, कौन से डायरेक्शन में बॉल जा रही है? केवल वाई एक्सिस के अलोंग ही तो ट्रैवल कर रही है। ऊपर भी फेंकोगे तो केवल वाई एक्सिस के अलोंग ही तो ट्रैवल करेगी। तो 1D हो गया कि नहीं हो गया? और एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि बॉल सीधे ही नीचे आएगी, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया, तो 1D मोशन ही तो हो रहा है। एंड एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ अब तो ये फेल हो गया, आप नहीं लगा सकते ये चीज। चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं फिर। तो ये बताओ जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है फिर? कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट ही तो है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या होता है? कांस्टेंट ही तो होता है। तो 9.8 क्या है? कांस्टेंट ही तो है, बदल तो नहीं रही ना, जी की वैल्यू तो नहीं बदल रही ना। कंडीशंस उसकी होती हैं कि कहीं कहीं पर, जैसे कि हमने बात किया कि वेट जब हमारा वेरी करता है तो वो डिपेंड करता है इस पे ही, हमारा जी की वैल्यू घटती बढ़ती है। लेकिन आइडियल कंडीशंस में जब हमको केवल एक पर्टिकुलर सिनेरियो सॉल्व करना है कि हम एक बॉल को गिरा रहे हैं और एक बॉल को फेंक रहे हैं, आइडियल कंडीशंस में तो एक कांस्टेंट ही है ना। अब पहाड़ पे जाके फेंक रहे हैं तो बात अलग है, वहां पे चीजें अलग हो जाएंगी क्योंकि वो एल्टीट्यूड पे है, वहां पे जी की वैल्यू अलग होगी, वहां पे चेंजेस आ सकते हैं, इक्वेटर पे अलग होंगे। बट एक आइडियल कंडीशन में क्या आप वहां पे रहते हो, क्या आप ऐसे रहते हो? सपोज कर लो आप आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हो, तो 9.8 तो कांस्टेंट है, तो मतलब कि ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मोशन भी बनती है। अब ये इक्वेशंस लगेंगी, तो अब ये इक्वेशंस जब लगेंगी तो कैसे लगेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी वेक्टर्स की बात करते हैं, एक्सेलरेशन क्या वेक्टर है, जब भी वेक्टर्स की बात करेंगे तो आएगा डायरेक्शन, एक ये और एक ये। आज केवल ये डिस्कस करेंगे, ये वाला केवल डिस्कस करेंगे। तो अब ये बताओ, अगर कोई मेरे साथ चल रहा है, ठीक है, कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे लाइफ में कोई इंसान है जो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, जैसे मेरे पेरेंट्स हो गए, तो मैं क्या बोलूंगा उसको कि वो हमेशा मेरे पॉजिटिव, हमेशा मेरे बेनिफिट्स के लिए, हमेशा मेरे पॉजिटिविटी, मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी बना के रखता है वो इंसान। तो हम लोग इसको लेंगे पॉजिटिव। क्यों लेंगे पॉजिटिव? क्योंकि बॉल गिर रही है ग्रेविटी के साथ ग्रेविटी के साथ गिर रही है बॉल, अर्थ ग्रेविटी नीचे है, बॉल नीचे, तो पॉजिटिव, इसको लेंगे प्लस में। बट कोई इंसान है जो हमेशा मेरे अगेंस्ट रहता है, हमेशा मेरे अगेंस्ट नेगेटिव बातें करता है, ठीक, हमेशा मेरे अगेंस्ट जाता है, मैं उसको बोलता हूँ कि तुम नीचे हो, तो वो इंसान ऊपर जाता है, तो क्या लेंगे इसको? नेगेटिव। इस कन्वेंशन को लेंगे नेगेटिव। पता है ये एक्चुअली कन्वेंशंस डिपेंड करता है सिस्टम पे, लेकिन जनरल कन्वेंशन में हम लोग यही लेते हैं। कुछ कन्वेंशन सिस्टम्स अलग होंगे जिसमें हो सकता है कि इसको नेगेटिव लेते होंगे, इसको पॉजिटिव लेते होंगे, लेकिन जनरल कन्वेंशन यही है। कोई मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ हमेशा रहा है, हमेशा सपोर्ट किया है, तो वो मेरे लिए पॉजिटिव इंसान हो गया। कोई मेरे अगेंस्ट जा रहा है, सपोज मैं ग्रेविटी हूँ, एंड कोई मेरे अगेंस्ट जा रहा है, हमेशा नेगेटिव बातें कर रहा है, तो बोलेंगे नेगेटिव। कन्वेंशन हो गए डिफाइन। अब जैसे कि हमने बोला कि हम केवल इस केस की बात करेंगे, तो अब हमको कन्वेंशन मिल गया, पॉजिटिव हो गया। अब इक्वेशंस लिखते हैं।
तो v इज इक्वल टू u प्लस a की जगह क्या आएगा g, टाइम तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट है, u v तो निकालेंगे हम लोग जो भी आएगा। दूसरी क्वेश्चन, अब देखो डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, h, एक हाइट से गिर रही है बॉल, h बराबर u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा देखो इन क्वेश्चंस में पता है ये भी होता है, अब v और u भी, ये भी तो दिमाग में आ सकता है कि सर v और u भी तो कन्वेंशन ही हैं, मतलब v और u भी तो वेक्टर्स हैं, तो उसके लिए भी तो कुछ कन्वेंशन डिफाइन करना चाहिए। बिल्कुल डिफाइन करेंगे, लेकिन जनरल आइडियल कंडीशंस में हम लोग नहीं डिफाइन कर रहे हैं अभी, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन की बात हो रही है, बस एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है। एंड सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन के साथ ड्रॉप कर रही तो वेलोसिटी भी तो उसकी उसी तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, नीचे वो भी जा रही है, तो वेलोसिटी भी तो पॉजिटिव ही हो गया, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हो गया, ठीक। थर्ड चीज, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g s, s क्यों, सॉरी h क्यों, क्योंकि अब h ने रिप्लेस कर दिया h को, तो ये तीन इक्वेशन हमको मिली, v बराबर u प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तीन इक्वेशंस मिल गई, और हमने ये भी प्रूव कर दिया था कि हाँ ये 1D मोशन है और इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि g की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आइडियल कंडीशंस हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, जितनी हमको जरूरत है, ठीक। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोई कहीं पर जाके फेंक रहा है, बॉल को ड्रॉप कर रहा है, तो हम लोग उसके वो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, बहुत ईजी है। बट अभी के लिए इतना जानना जरूरी है कि ये तीन इक्वेशंस यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं, यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, बस वैल्यूज बदल जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी। फिर जब हम लोग फेंकेंगे किसी चीज के ऊपर, तो वहां पे अलग कन्वेंशन लगेंगे, क्योंकि हम कोई मेरे अगेंस्ट जा रहा है। बस इसको ऐसे सिंपल से रखना, लाइफ के टर्मिनोलॉजीज में कोई आपके साथ है, ठीक, LIC की तरह, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो वो पॉजिटिव में लेके चलेंगे आप। अगर कोई अगेंस्ट जा रहा है आपकी, देन यू हैव टू टेक दैट वैल्यू एज नेगेटिव। So I hope that all these concepts which were covered today is clear to all of you. And if someone is having any doubts, then you have the Telegram channel. Do not text on the channel. Text on the foundation wala group or text me personally. I'll try to resolve your doubt. Or if you have to add something, or if you have some interesting fact about gravitation, then please do text me. I'll be more than happy to address those facts to the class as well. So thank you. That is it for today. And now we can stop the recording.